चलिए, I think we should start now. Sir, are we ready? ठीक है सर. Welcome back participants. हमारे सेकेंड सेशन के लिए we have with us Dr. Kanhaiya Jha Divana. He is officer on special duty to DD Northeast 1. He initiated his job as lecturer history in DOE in December 2003. He rendered his service as lecturer, vice principal, HOS, principal, then OSD, and he has been RP and KRP subject experts in DOE, KVS, CBSE, and SCERT Delhi till date. He is also a subject expert in NIOS. He is a great academician as well as an educational leader and a positive human being. Today, he is here with us to throw some light on how to fill APAR and ACR and other administrative matters. Please welcome Dr. Kanhaiya Jha. Thank you, madam. You have given me an opportunity to express my views and knowledge among newly appointed vice principal of DOE, and that is a proud moment for me and helpful to our newly vice principal of DOE. Now I and administrative matter very well and efficient manner. I will Sir, sorry to interrupt you, sir. Sir, sorry to interrupt you, but आपकी voice बहुत ज़्यादा break हो रही है. हेलो जी, सर कन्हैया सर. जी वॉइस सर. हाँ हाँ बोल. हाँ अब आवाज आ रही है. वॉइस ब्रेक हो रहा था सर. जी अभी आ रही है सर. Itself them, and then after a assessment would be taken after the session. Now to for pre-test. This first question is how as vice principal completed. स्पष्ट है. Writing HCR public apart earlier. This answer is also yes or no. Yes, if no. Reviewing of ACR public apart earlier. What do you give reason? Oblique copy of a part give to other person under RTI Act 2005, and if no,
But the voice is so कन्हैया breaking सर, in. कन्हैया सर, सर आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आप अपना वीडियो ऑफ करके देखिए सर। Actually, we are not getting anything from you. This is breaking very badly, and we don't understand anything. So I would request you to just see the technical your side and जी सर, try to. सर यस वी आर डूइंग दैट। कन्हैया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का आई गेस प्रॉब्लम हो रहा है। आप सर अपना वीडियो ऑफ करके देखिए। वीडियो ऑफ करके आप बोलिए सिर्फ। वीडियो ऑफ करो। स्टॉप वीडियो करिए। हाँ हाँ। अब बोलिए सर। नाउ आई एम ऑडिबल। यस सर, मच बेटर। ओके। ठीक है सर, आप ऐसे ही बोलिए वीडियो। हाँ। Again, I repeat about pre-test question. First question: how many years experiences have you as vice principal / HOS? Option is 0, 1, 2, and more than 2. Second question is: have you done the work as a reporting officer for writing of SCR / APAR earlier? Option yes or no. Third, have you done the work as a reviewing officer for reviewing of SCR APAR earlier? Option is A yes, B no. Fourth question is: do you think that knowledge of filling of SCR / APAR and its maintenance along with administrative matter required? If yes, give reason to. If no, give reason to. Fifth question: can the information / copy of SCR give to other person RTI Act 2005? Option is yes. Second option is no. Third option is generally no, but can give in special circumstances by the permission of competent authority. So I hope that you will prepare the answer, and we have to go ahead for next slides. Excuse me, sir. Let me know how to fill this form first. Do we need to fill it right now? G, again repeat question. Hello. I am asking that you have given this pre-test questions. So do we need to fill it right now? Yes. But how can we fill this? You have to react your answer. You have to react your answer, please, for self-assessment. And after that, post-test, you have to match yourself for enhancement your knowledge of. This is the new process initiated by SCRT in service training program, that provision of pre-test question and post-test question of the session. This is first time initiated. Okay. Now, today's content is aim and objectives of APAR / ACR. Second, general guideline for APAR. Third, time schedule for preparation and completion of APAR / ACR. Fourth, various structure of APAR / ACR administrative matter. Now, we have to approach through this content in this session.
Now, first, aim and objectives of APAR/ACR. The APAR/ACR is an important document. It provides the basic and vital inputs for assessing the performance of officials/officers. It helps for further advancement in the career of official/officers. Here I am excusing about some typing error. In third point, it helps FR, that should be for, then ignore. Fourth, APAR/ACR plays significant role in the development of employees as well as institutions. Very important, the official reporting upon means the employee, the reporting authority and the reviewing authority and the accepting authority should undertake the duty of filling out form with a high sense of responsibility. It means every person should take their responsibility to fill the information of ACR APAR devotedly, sincerely. The channel for filling ACR/APAR is as follows. Official/officer reporting upon. It means the employee who report their information to the reporting officer. It means it relates to the employee. Second, reporting officer. Reporting officer assess the information of officer reporting upon, and then the information forwarded by reporting officer to the reviewing officer. Other authorities accepting officer where applicable. ये हर जगह एक जैसा नहीं होता है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. The column of APAR/ACR should be filled with due care and attention, and after devoting adequate time according to the guideline of DOPT and recent circular issued by the department. Why DOPT OM number given on the slide 21011/1/2005, establishment A, PT second, dated 16 February 2009, and OM of 14th May 2009 on the subject of timely preparation and proper maintenance of APAR/ACR for making the APAR transparent for representation for upgradation, if any, by the official/officials reported upon. The guideline of DOPT and details may be available at the website www.performance.gov.in. General guidelines for APAR/ACR. First, we have to discuss ACR, and now nomenclature of change of ACR as APAR. ACR should be recorded within 1 month of the expiry of the report period. Delay on the part of reporting officer should be adversely commented upon. Delay submission of the self-appraisal. This should be adversely commented upon by the reporting officer. If the reporting officer retires or otherwise demits office, he may be allowed to give the report on its subordinates within a month of his retirement or demission of office. All the officers' remarks in ACR of government servant, inter alia, performance as well as basic qualities and potentials should be communicated along with a mention of good points within 1 month of their being recorded. The communication should be in writing, and a recorded to the effect should be kept in the
character role dossier of the government servant. Only one representation against adverse remarks, warning, or reprimands, which are recorded in ACR, should be allowed within 1 month of their communication. While communicating the adverse remarks to the government servant concerned, this time limit should be brought to his notice. A representation against adverse remarks should be decided expeditiously by the competent authority and in any case within 3 months from the date of submission of the representation. Adverse remarks should not be deemed as operative. Again, I repeat, adverse remarks should not be deemed as operative if any representation is made filed within the prescribed limit is pending. If no representation is made within prescribed time or once this has been finally disposed of, there would be no further bar to take notice of the adverse entries. No memorial or appeal against the rejection of the representation should be allowed 6 months after such rejection. Again, I repeat, no memorial or appeal against the rejection of the representation should be allowed 6 months after such rejection. सर आप इसको अगर साथ साथ समझा भी सकें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा आ रहे हैं। हाँ। अगर आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में है फिर भी। हाँ सर थोड़ा हिंदी में समझाओ। हाँ सर थोड़ा हिंदी में समझाओ। जी हेलो, थोड़ा हिंदी में भी अच्छा। समझाओ इसको। ठीक है ठीक है ठीक है सर। देखिए ये जो रेड में है कि नो मेमोरियल और अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन शुड बी अलाउड 6 महीने के बाद अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेशन एडवर्स मार्क्स के अगेंस्ट हो जाता है तो 6 महीने के बाद फिर आपका कोई अपील और कोई रिजेक्शन नहीं लिया जाएगा। इसका ये है instruction to be followed by reporting officer. It is observed that attention is not paid to writing of ACR and ACR are written and reviewed in a casual manner that affects adversely the career of official reported upon. यहाँ पे कि जो ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन है, जो एम्प्लॉय अपना पार्ट भरता है उस पे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो कैजुअल मैनर में लेते हैं और जिसके कारण बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो इसको कैजुअल मैनर में ना लेकर के इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ना केवल एम्प्लॉय के लिए जैसा कि पहले डिटेल किया था कि ना केवल एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए बल्कि इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इसे सीरियसली लेना चाहिए और इस पे सफिशिएंट अटेंशन एंड टाइम दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी रिजल्ट ऑफ ए टीचर इन हिज सब्जेक्ट इज 80% but graded as average or poor. How is it possible? एक तरफ तो रिजल्ट हम देख रहे हैं कि 80% है, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर ने उसके पार्ट को देखा ही नहीं। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। And immediately on the transfer of the official reported upon or reporting officer. इसका मतलब ये है कि 3 मंथ से अधिक काम की में केवल एक लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर 8 महीने किसी दूसरे स्कूल में काम किया है, इंस्टीट्यूशन में काम किया, 4 महीने इधर काम किया तो 4 महीने वाला इधर लिखेगा, 8 महीने वाला उधर लिखेगा। वो लेटेस्ट जो लास्ट वाला है और एटलीस्ट 3 मंथ होना चाहिए। The SER should reflect an objective observation on the work and conduct of the official reported upon, keeping aside on human basis. मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए वर्क कंडक्ट को
लिखते वक्त रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी ऑफिशियल, इट शुड बी मेड क्लियर that on transfer the official has reported for duty at office, school, public branch, furnishing full particulars of the place of duty. अगर ट्रांसफर हो जाता है तो एम्प्लॉय अपने पार्ट में उसका पूरा डिटेल भी डालेगा कि कहां से आया है, एक बॉक्स होता है उसमें डालना होता है। रीजंस फॉर नॉट राइटिंग ACR in any case of any official should be invariably made clear in writing to give confidential cell by furnishing full particulars in the form prescribed for the purpose of itself and otherwise. यहाँ पे इसका सेंस ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई है उसका ACR नहीं लिखा गया है, उसके कई कारण हो सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर रिटायर हो गया, रिव्यूइंग ऑफिसर रिटायर हो गया, जो भी कारण है उसको कॉन्फिडेंशियल सेल को बताना पड़ेगा। Delay oblique not writing ACR without specifying reasons will be dealt with very seriously. अगर डिले होता है और ACR नहीं लिखा जाता तो इसको सीरियसली लेते हैं, लिखना चाहिए क्योंकि ये स्पेशल ड्यूटी में आता है। सेल्फ अप्रेजल, ग्रुप A, B and C officer required to submit brief resume not exceeding 300 words as self appraisal relating to पीरियड ऑफ रिपोर्ट। देखा होगा कि जो ACR है, अपार है, उसमें कॉलम होता है पेन पिक्चर के लिए एम्प्लॉय की तरफ से, तो लोग ऑब्जेक्टिविटी छोटे छोटे वर्ड में दे देते हैं। एक 300 वर्ड्स का अपना सेल्फ अप्रेजल लिखना चाहिए। उससे क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर को असेस करना आसान हो जाता है, साथ ही व्यक्ति को भी अपनी पोटेंसी का पता चलता है और वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। सबमिशन ऑफ लेंदी नोट इन ए सेपरेट शीट टू बी अवॉइडेड। कई लोग क्या करते हैं, 300 वर्ड जो टाइम लिमिट है उससे अलग हट करके सेपरेट शीट देते हैं, तो इस प्रोसीजर को बचना चाहिए। वो भरवस हो जाता है, वो फिर मुश्किल पैदा करता है। आप प्रिसाइज लिखें और एग्जैक्ट लिखें, जो आपके ड्यूटीज को, जो आपकी पर्सनैलिटीज को वो रिफ्लेक्ट करें। To be completed and submitted before due date, duly signed and dated. The following column is to be added in the self-appraisal form as column number 4 in the case of group A and B officers only. Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date inter alia 31st January of the year following the calendar year. If not, the date of filing the return should be given. इसका सीधा मतलब है कि एक कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होना चाहिए। इसमें जो इमेबल प्रॉपर्टी आपने परचेज किया है, जो भी लिया है, उसका एक इंफॉर्मेशन का कॉलम आता है, उसमें उसको देना चाहिए, ये कंपलसरी है। पार्ट रिपोर्ट्स आर नेसेसरी if the official is transferred to the control of another reporting officer in the same or another office during the year. Reports are to be retained by respective reporting officer for the relevant period. यहाँ पे एक क्लियर गाइडलाइन है कि 3 महीने से कम से कम 3 महीने का होना चाहिए, तो शेष जो है वो नेक्स्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर के पार्ट पे आ जाता है, उसको लिखना है। If the reporting officer transferred during the year, he should write ACR for all the staff under his control to the date of his transfer within 3 to 5 weeks. अब देखिए, पहले पॉइंट में क्या है कि ऑफिशियल अगर ट्रांसफर होता है तो जहां 3 महीने वाला है वहां जाएगा। अब रिपोर्टिंग ऑफिसर ट्रांसफर हो रहा है, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए गाइडलाइन ये है कि उसके ट्रांसफर के डेट से 3 से 5 सप्ताह के अंदर उसको लिखना चाहिए। If the reviewing officer is transferred and new reviewing officer is not likely to have at least 3 months to supervise the work of the employee concerned.
अब यहाँ एक रिव्यूइंग ऑफिसर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो 3 महीने ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में ये कंडीशन अलाउ किया जाता है कि वेयर पार्ट रिपोर्ट्स आर रिटेन और एनी पीरियड ऑफ ए ईयर आर नॉट कवर्ड बाय रिपोर्ट फॉर द रीजंस in stated para 8 above, a certificate or a note in the form of given below to be placed on file duly signed by the present reporting or reviewing officer. मतलब अगर वो 3 महीने नहीं कर पा रहा तो वहां वो एक सर्टिफिकेट देगा, जैसा कि नीचे है, सर्टिफाइड दैट देयर इज नो रिपोर्ट्स फॉर द पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना ड्यू टू चेंज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर. सर नो वॉइस. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. अब आ रही है आवाज? आ रही है ना? सर अब आ रही है. हाँ अब आ रही है. अच्छा, अब आ रही है आवाज. हाँ, ऐसे ही जब नहीं आए तो बता दीजिएगा. रिपोर्टिंग जो हो वो रियलिस्टिक और इम्पार्शियल होना चाहिए. रिपोर्ट ऑफिसर should assess every field or point given by the official reported upon in realistic way or an impartial way. Again, assessment for the period of report only. Comments and observation to relate the period of report only. अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सेशन होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, तो हमें जो भी कमेंट ऑब्जर्वेशन लेना है वो उसी पीरियड का लेना है. ये नहीं कि उसके पहले का और उसके बाद का, वो गलत हो जाता है. ऑल कॉलम टू बी फिल्ड, नो कॉलम टू बी लेफ्ट ब्लैंक, ये क्लियर गाइडलाइन है. एब्स्ट्रैक्ट कमेंट्स फॉर मोर देन 1 कॉलम ब्रैकेटिंग टुगेदर टू बी अवॉइडेड. कई बार क्या होता है कि हम लिखते हैं और ब्रैकेट में और कुछ डाल देते हैं, तो ऐसे प्रोसीजर से बचना चाहिए. नेक्स्ट, अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग. मेंशन टू बी मेड ऑफ अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग इफ एनी अंडरटेकन ड्यूरिंग द पीरियड. जो असेसमेंट पीरियड है उसमें जो आपने ट्रेनिंग लिया है या कोई कोर्स है, तो एक तो एम्प्लॉई को अपने पार्ट पे मेंशन करना चाहिए, और एम्प्लॉई अपने पार्ट पे मेंशन करता है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर को उस पे कॉग्निजेंस लेकर के अपने रिपोर्ट में उसको अप्रूव करना चाहिए. अगेन, कॉलम फॉर इफेक्टिवनेस इन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ SCs / STs टू बी फिल्ड वेयर एप्लीकेबल. यहाँ पे चूंकि ये DOPT का गाइडलाइन है तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग गाइडलाइन. तो अगर जहां लागू होता है उसके लिए है, जहां लागू नहीं होता है वहां पे हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके उस कॉलम में लिख देंगे. ग्रेडिंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग ACR APAR of the employee taken by reporting officer, and the issues must be reviewed by reviewing officer. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज. यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि ACR क्वालिटी दिखाता है जबकि अपार क्वांटिटी दिखाता है. यहाँ पे क्वालिटेटिव ग्रेडिंग है, अपार में न्यूमेरिक फिगर है जो ट्रांसलेट हो जाता है क्वालिटेटिव में. आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, कंसिडर्ड एज फेवरेबल remark, favorable grade. Average by itself not considered adverse. यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं
कि एवरेज अपने आप में एडवर्स नहीं है, but DPC may consider in promotion only for cases above average. सामान्य तौर पे एवरेज एडवर्स नहीं है, परंतु डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कंसीडर करती है केस प्रमोशन के लिए, उसमें वो ग्रेडिंग अबव एवरेज मानता है। तो बाहरी तौर पे तो एडवर्स नहीं लगता है, लेकिन डीपीसी में अगर हिंड्रेंस पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे डेवलपमेंट में बाधा पैदा कर रहा है। तो इन रिगार्ड देयर इज क्लियर गाइडलाइन, हेंस ग्रेडिंग एज एवरेज टू बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, बचना चाहिए जहां तक बच सकते हैं। बिलो एवरेज इज सर्टेनली an adverse report and need justification. Again I repeat, below average and average both need below average is certainly an adverse report and need justification. जब हम below average देते हैं तो हमें एक पेन पिक्चर लिखना होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर को, और रिव्यूइंग ऑफिसर को उसको जस्टिफाई करना होता है कि सही है या गलत है। तो पूरा जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि इम्पार्शियल होते हुए हमें देखना है, तो उसका एक जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग देते हैं तो उसका भी जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो इसको पूरा करना चाहिए। फेयरली गुड नॉट ट्रीटेड एज, अब यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि गुड प्रमोशन के लिए तो ठीक है, लेकिन एक कॉलम आता है रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए जहां पंक्चुअलिटी है, तो वहां फेयरली गुड नॉट ट्रीटेड एज एडवर्स बट सच रिमार्क अगेंस्ट पंक्चुअलिटी कॉलम टेकन एज एडवर्स। तो पंक्चुअलिटी के कॉलम में गुड को एक एडवर्स स्थिति माना जाता है, देन इट इज रेफर्ड एज दिस टर्म आल्सो नॉर्मली टू बी अवॉइडेड in the column of punctuality. Punctuality में good देने से बचें। Integrity. If integrity of official is beyond doubt, may be stated so against the column. इस कॉलम में क्लियरली रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा कि इंटेग्रिटी इज बियॉन्ड डाउट। इन केस ऑफ डाउट और सस्पिशन देयर इज ए प्रोसीजर, prescribed procedure for reporting officer, a secret note separately to be followed up. अगर सस्पिशन लगता है, डाउट लगता है रिपोर्टिंग ऑफिसर को, तो बजाय लिखे उसमें एक सेक्रेट नोट बनाएंगे एंड द कॉलम टू बी फिल्ड अप सुटेबली इफ डाउट्स आर क्लियर्ड। जो सेक्रेट नोट शीट है वो रिव्यूइंग ऑफिसर को भेजेंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर फिर उसमें कॉग्निजेंस लेगा, वेरीफाई लेगा, अगर डाउट सही में क्लियर्ड हो गया तब फिर उस कॉलम में भरेंगे। सस्पिशन आर कंफर्म्ड, फैक्ट टू बी रिकॉर्डेड। अगर सस्पिशन क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया, तो उसको हम उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। इफ नो केस डाउटफुल इंटेग्रिटी और कंप्लेंट्स रिसीव्ड अगेंस्ट द ऑफिशियल टू बी मेंशन, if there is no material for follow up action, general practice is to be mentioned, then comments is written as nothing adverse came to my notice. Again I repeat, in that condition nothing adverse came to my notice. Next, इस पैरा को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैरा है कि जब बियॉन्ड डाउट है तो उसमें तो रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखते ही हैं कि इंटेग्रिटी ऑफ द ऑफिशियल इज बियॉन्ड डाउट, है ना। अगर कोई डाउट या सस्पिशन है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि एक सेपरेट नोट शीट बना करके रिपोर्टिंग ऑफिसर भेजे रिव्यूइंग ऑफिसर को और उनका वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो डाउट सही आता है तो तब उसमें भरें फैक्ट्स को, और अगर नहीं कुछ आता है तब उस कंडीशन में बियॉन्ड डाउट के बजाय नथिंग एडवर्स केम टू माय नोटिस ये रिपोर्ट करके आप उसमें करें। अगेन सिग्नेचर
report to be signed and dated indicating designation, preferably with a rubber stamp, and handed over to the reviewing officer. Manas, ये बढ़ क्यों नहीं रहा? Again, guideline for reviewing officer. Period of report. Reviewing officer have no watch to work or conduct. Reviewing officer have to watch the work and conduct of the official at least 3 months in a year. सिमिलरली जैसे ही रिपोर्टिंग ऑफिसर के लिए है कि कम से कम 3 महीने देखना है उसके वर्क एम्प्लॉय के वर्क कंडक्ट को, उसी तरीके से रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए भी गाइडलाइन है. सेकेंड, टू एंश्योर करेक्ट रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग ऑफिसर विल see carefully that reporting officer has done as per instruction or guideline. In case a vague or ambiguous remarks, reviewing officer may return the report to the reporting officer for necessary revision. If the reviewing officer disagree with any part of the report, then he may state with suitable remarks. इसका मतलब ये ऑफिसर ये इंश्योर कर लेंगे कि जो रिपोर्टिंग की गई है रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा वो सही है और जो इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन है ACR के मामले में उसका पालन किया गया है. यदि अस्पष्ट है या हिडन रिमार्क्स है, क्लियर नहीं है और रिपोर्टिंग ऑफिसर को ये लगता है, तो इस स्थिति में रिपोर्ट को रिपोर्टिंग ऑफिसर को नेसेसरी रिवीजन के लिए वह लौटा सकता है. फिर भी अगर रिव्यूइंग ऑफिसर डिसएग्री होता है किसी भी पार्ट से, तो उस पार्ट में रिव्यूइंग ऑफिसर अपना एक सुटेबल रिमार्क्स लिख सकता है और रिव्यूइंग ऑफिसर का जो रिमार्क होगा वो फाइनल माना जाएगा. रिव्यूइंग ऑफिसर्स रिमार्क्स एज ए फाइनल. Where reviewing officer disagrees and give his own remarks duly substantiated, such as remarks treated as final and will be taken into account by the DPC. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर रिव्यूइंग ऑफिसर अस्पष्ट और छिपा हुआ रिमार्क देता है और रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर उससे सहमत नहीं होता है, तो वह लौटा सकता है नेसेसरी रिवीजन के लिए. फिर भी अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर लौटाता है रिवीजन करने के बाद और उसके ओपिनियन से संतुष्ट नहीं होता, उसके रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, तो उस पार्ट में रिव्यूइंग ऑफिसर अपना रिपोर्ट लिखेगा क्लियरली और रिव्यूइंग ऑफिसर का रिपोर्ट फाइनली माना जाएगा और वही डीपीसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा. The writing of ACR is an official and such an official under suspension cannot write such reports. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज है कि ऑफिशियल अंडर सस्पेंशन कैन नॉट राइट सच रिपोर्ट. मतलब अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर सस्पेंशन की स्थिति में है तो उनकी कॉम्पिटेंसी को चेक लगाया गया है. उसके लिए कंडीशन है कि इन दिस सर्कमस्टांसेस एन ऑफिसर सुपीरियर टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर. अगेन आई रिपीट, एन ऑफिसर सुपीरियर टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी जो ऑफिसर अंडर सस्पेंशन में है उसके एक हायर रैंक का अधिकारी may initiate the report on the staff provided he has the requisite experience of at least 3 months of the work of the staff reported upon. कि उसके सीनियर का एक अधिकारी होगा जो कम से कम 3 महीने के लिए उसके वर्क कंडक्ट रिपोर्ट को ऑब्जर्व किया होगा. वो एसेंशियल रिक्विजिट एक्सपीरियंस इसके लिए जरूरी है. The retired officers are not empowered to review the ACR after their retirement. Again, I repeat, the retired officers are not empowered
to review the ACR after their retirement. However, a note be kept in the ACR dossier of the concerned official by the reporting office that the reports could not be got reviewed as the officer who was to review the reports had been retired from the service. यहां मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर कोई ऑफिसर रिटायर्ड हो जाता है तो उसका एम्पावरमेंट रिव्यू के लिए खत्म हो जाता है, रिपोर्ट के लिए खत्म हो जाता है, और उस स्थिति में क्या होगा कि जो एसीआर डोजियर है एम्प्लॉय का, ऑफिशियल्स का, उसके अंदर एक नोट रखा जाएगा और उस पे क्लियरली लिखा जाएगा द रिपोर्ट्स कुड नॉट बी गॉट रिव्यूड एज ऑफिसर हु वाज टू रिव्यू द रिपोर्ट्स हैड बीन रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस. Now, very important part in ACR/R में आगे डिस्कस करेंगे एडवर्स एंट्रीज. अभी हमने देखा था कि ग्रेडिंग में किसे एडवर्स माना गया है कि एवरेज जनरली एडवर्स नहीं है, बट डीपीसी के द्वारा प्रमोशन के लिए एक्सेप्टेड नहीं है. तो बाहरी तौर पे तो नहीं है लेकिन फिजिकल तौर पे है. दूसरा पुअर एडवर्स है. यहां क्लियर करना है कि एडवर्स रिमार्क देने का अपना प्रोसीजर है. एडवर्स रिमार्क जो भी दें उसका जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है. All adverse entry in the ACR should be communicated by the officer recording them where countersigned by the reviewing officer prescribed. Only such of those entries which are accepted by them are to be communicated. यहां पे क्लियरली है कि एडवर्स रिमार्क देने के लिए कम्युनिकेशन करना जरूरी है. अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर दे रहा है तो काउंटर साइन करेगा रिव्यूइंग ऑफिसर, उसको करना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया गया है तो ये प्रोसीजरल मिस्टेक माना जाएगा और उसका बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलेगा. रिमार्क्स above the physical defects noted in the confidential report need to be communicated. कोई फिजिकल डिफेक्ट है तो वो उसको नोट करना चाहिए. Similarly, the grading of officer done on the basis of the general remarks in the report should not also be communicated, even if it is adverse. The identity of the officer marking the remarks should not be normally be disclosed. ACR में डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है. कम्युनिकेशन सर सेकंड पॉइंट जो है ना सर, सेकंड पॉइंट रिमार्क्स अबव द फिजिकल डिफेक्ट्स, हाँ जी, ये प्लीज दोबारा बताइए. रिमार्क्स अबव द फिजिकल डिफेक्ट्स. फिजिकल डिफेक्ट्स क्या होगा? अगर कोई शारीरिक विकलांगता है तो उसको नहीं हमें उसमें कम्युनिकेट करना है. जी जी ठीक है. थैंक यू सर. और दूसरा चौथे पॉइंट पे भी मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं. द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफिसर मार्किंग द रिमार्क्स शुड नॉट बी नॉर्मली बी डिस्क्लोज. यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, एसीआर और अपार में यही बेसिक डिफरेंस है कि एसीआर में डिस्क्लोज नहीं करना है नॉर्मली, और अपार में तो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है. अगर अपार में आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो वो अपार की वैलिडिटी खत्म हो जाती है. एक्सक्यूज मी सर, सर जो रिपोर्ट ऑफिसर या रिव्यूइंग ऑफिसर है, नीचे उनका नाम प्रिंटेड आता है, उनका वो साइन करते हैं, उनका स्टैंप लगता है, तो डिस्क्लोज तो हो गया. तो डिस्क्लोज देखिए मैडम, मैं बता रहा हूं कि हम लोग करते हैं लेकिन एसीआर में ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन अपार में करना जरूरी है. ये अंतर है दोनों. अभी एसीआर वाला पार्ट अपार में आएगा तो वहां पे आगे. कम्युनिकेशन ऑफ द एडवर्स रिमार्क्स शुड बी मेड विद इन 1 month ऑफ देयर बीइंग रिकॉर्डेड. देखिए, एक तो एडवर्स एंट्री जब भी होती है तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड, और उसके लिए टाइम फ्रेम है 1 month. जब वो रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसका 1 month, वो इसलिए ताकि वो एडवर्स एंट्री का अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके.
और कम्युनिकेशन जो रिकॉर्ड किया जाता है उसके भी पहले, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एडवर्स रिमार्क देने के पहले कम से कम एम्प्लॉय को एक बार तो कम से कम दे दें कि आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, क्यों ना इस फील्ड में, तो आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने परफॉर्मेंस को सुधारो। ये एक हथियार नहीं है कि कट करना है एम्प्लॉय को, ये एक प्रोग्रेसिव टूल है जो टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग ऑफिसर की एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जाता है ताकि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने बिहेवियर या अपने वर्क कंडक्ट या जो ला सके। अगर ये प्रोसेस पालन नहीं करते हैं और वर्क कंडक्ट में एडवर्स रिमार्क दे देते हैं तो ऑन द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर। Again, the adverse entry. The substance of entries report, including what may have been stated in praise, is also to be communicated, as also the improvement made in respect of defects, if any mentioned in the earlier report. अगर कोई उसका इम्प्रूवमेंट है या उसकी कोई प्रशंसा है तो उसको उसमें शामिल करना चाहिए। यहाँ सपोज एक उदाहरण मैं देता हूं कि आपने एक व्यक्ति को दे दिया कि आपका रिजल्ट गिर रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली में रिजल्ट गिर गया और फिर एनुअल एग्जाम में उसका रिजल्ट बढ़ गया, तो उस चीज को आपको उसमें लिखना है कि हाँ याद दिया था ये बढ़ गया, या फिर लगातार गिर गया, वो चीजें आपको रिपोर्ट में लेना चाहिए। हाँ, the forwarding memo should be couched in a such language, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the forwarding memo should be couched in a such language, in such a language as to make it clear to the officer reported upon, means employee, that the intention of the communication is that he should try improve himself in respect of those defects. जब आप कोई डिफेक्ट्स बताते हैं तो वो अपनी बात, हेलो बोलिए सर, आवाज लक्ष्मण जी बोल रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही है। हेलो लक्ष्मण जी स्पीकिंग, बट ये लगता है बाहर में है कहीं, गाड़ी की आवाज आ रही है। हाँ, अगेन हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसको बड़ा ध्यान से देखना है कि हम जो मेमो इशू करते हैं इसके रिगार्डिंग एडवर्स के, उसकी भाषा बड़ा प्रोग्रेसिव ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय को एक मौका मिले, एम्प्लॉय अपने आप को ट्राई करे इम्प्रूव करने का, जो भी डिफेक्ट्स आपने इस मेमो के दौरान बतलाए हैं। तो एडवर्स एंट्री एकदम सीधे तौर पे नहीं किया जाता है, उसके लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है कि पहले टाइम टू टाइम बताएं, उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें और उसके बाद जब फाइनल होता है तब फिर उसमें कोई नहीं सुधार हो पाता है तब जाकर के हम उस पर लेते हैं। While communicating the adverse remark, the time limit for making representation against same via 1 month should be brought to the notice of the officer. जब हम कम्युनिकेट करते हैं एडवर्स रिमार्क को तो एक टाइम पीरियड उन्हें बताना होता है, उसके नॉलेज में लाना होता है ऑफिसर के कि आप विद इन 1 मंथ अपना रिप्रेजेंटेशन 1 रैंक हायर को दे सकते हैं ताकि आपके एडवर्स रिमार्क को वो रिव्यू कर सके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑल एडवर्स एंट्रीज in the confidential report of the officer should be communicated by the reviewing officer after they have seen by the countersigned authority if any. This should be done as far as possible within 1 month of the completion of the report. The communication should be in writing and a record to that effect should be kept in the confidential role of the officer where there is no reviewing officer
the adverse entry will be communicated by the reporting officer likewise. अब ये जो रेड में इंपॉर्टेंट चीज है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एडवर्स एंट्रीज एसीआर का कम्युनिकेटेड किया जाएगा रिव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा, लेकिन उसके लिए समय सीमा क्या होगा, 1 मंथ। जब कंप्लीट हो जाता है, सारे ऑफिसर अप्रूव कर देते हैं, तो उसके 1 महीने के अंदर उसको राइटिंग में देना पड़ता है ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। अगर समझिए कि रिव्यूइंग ऑफिसर नहीं है या रिटायर हो गया या जो भी है, तो उस स्थिति में एडवर्स एंट्री का जो काम करेगा वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा। Now, representation against adverse remarks will lie to the authority immediately superior to the countersigning authority. अब रिप्रेजेंटेशन किसको दिया जाएगा, तो जो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है। काउंटर साइनिंग अथॉरिटी कौन है, तो रिव्यूइंग ऑफिसर है। रिव्यूइंग ऑफिसर से 1 रैंक अबव ऑफिसर को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इफ एनी, और टू द रिपोर्टिंग ऑफिसर if the immediate superior authority has already reviewing officer the report and has also expressed his view either agreeing or disagreeing with the remarks recorded and accepted by the authority. Should be discussed by the competent at any rate within 3 months. Again, I repeat, because it is very important, representation against adverse remarks should be expeditiously disposed of by the competent authority at any rate within 3 months. जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको बड़ी शीघ्रता से 3 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगेन, इफ दैट अथॉरिटी डिसाइडेड दैट द एंट्रीज आर नॉट जस्टिफाइड एंड डिजर्व एक्सपंक्शन। अब देखिए, रिप्रेजेंटेशन गया और अथॉरिटी सोचती है, तय करती है कि एंट्रीज जो है वो जस्टिफाइड नहीं है और एक्सपेंशन निरस्त करने के लिए फिट है, then he should score through the remark, paste it over or obliterate it under intimation to all the concerned. यहां पे एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन दिया गया और हियरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन अथॉरिटी ये सोचती है कि जस्टिफाइड नहीं है, इसको एक्सपंक्ट होना चाहिए, तो अपने के साथ वो रिमार्क देती है, या तो उसको उसके ऊपर चिपका दिया जाएगा या फिर उसको अलग से उसके फोल्डर में रख दिया जाएगा और सारे कंसर्न ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा। If the authority feels that remarks should be toned down, यहां पे थोड़ा सा ये समझना है कि कई बार हम भाषा, रिपोर्टिंग ऑफिसर बड़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं या रिव्यूइंग ऑफिसर भी उनको एग्रीड कर देता है। तो अगर अथॉरिटी को लगता है कि जो एम्प्लॉय ने अपना पार्ट भरा है उसके अगेंस्ट में जो असेसमेंट हुआ है उसमें उसके टोन डाउन करना है, तो it should make necessary entry separately with proper attestation at appropriate place of report. तो जहां पे ऐसा लैंग्वेज को टोन डाउन करना है वहां पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक सेपरेट रिपोर्ट वहां पे रखेगी with proper attestation. No correction should be made in the earlier entries themselves. यहां पे एक चीज है कि उसको काट करके नहीं करना है, जो उन्होंने किया है वो एज इट इज रहेगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर का है, रिव्यूइंग ऑफिसर का है, जो रिपोर्ट रहेगा उसमें काट करके इनको इंप्रूव नहीं करना, करेक्ट नहीं करना है, बस केवल उसके बगल में एक सेपरेट नोट डालना है और उसको अटेस्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट,
if the authority comes to the conclusion that there is no sufficient ground for interference, this is favorable for reporting officer or reviewing officer against the official reported upon. It means कि अथॉरिटी को इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि जो ग्राउंड है उसमें कोई ग्राउंड नहीं है इंटरफेरेंस करने का, हस्तक्षेप करने का, तब रिप्रेजेंटेशन शुड बी रिजेक्टेड एंड द ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। रिप्रेजेंटेशन के दौरान अथॉरिटी को लगता है कि कोई भी इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, तो अथॉरिटी रिजेक्ट कर देगी और उसको ऑफिशियल को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। Where a penalty is set aside on appeal or review, the adverse remark recorded on the basis of the penalty should be expunged. अगर कोई पेनल्टी या कोई चीज अलग हटा दिया गया और अपील में है या रिव्यू में है, तो उस स्थिति में एडवर्स रिमार्क जो रिकॉर्डेड किया गया है वो एक्सपंज्ड कर दिया जाएगा। Where the penalty is modified, अगर उस पेनल्टी को मॉडिफाइड कर दिया गया है, तो एंट्री इन द ACR originally made on the basis of the penalty awarded should also be immediately modified accordingly and same will be intimated. कहने का मतलब है कि अगर कोई पेनल्टी लगाया गया और व्यक्ति अपील में चला जाता है या रिव्यू में जाता है और उसमें उसको अलग हटा के उस पेनल्टी को खत्म कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में एडवर्स रिमार्क्स का रिकॉर्ड जो है वो एक्सपंज हो जाएगा। और अगर पेनल्टी मॉडिफाई कर दिया गया है तो वो मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन अवार्ड किया जाएगा ACR में और इन्फॉर्म किया जाएगा उससे। Where adverse remarks in the confidential report of an officer have not been communicated to him, this fact should be noted by the departmental promotion committee while assessing the ability of the officer for promotion और confirmation। यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि अगर एडवर्स रिमार्क जो ACR में दिया गया है वह कम्युनिकेट नहीं किया जाता है कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा एम्प्लॉय को, तो DPC इस मामले में एक सीरियस नोट लेती है और जो भी उसका फैसला होगा वो माना जाएगा। और इस कंडीशन ये a case where a decision on the representation of an officer against adverse remark has not been taken or the time allowed for submission of is not over, the departmental promotion committee may in its discretion defer the consideration of case till a decision on the representation। यहाँ पे ये है कि रिप्रेजेंटेशन का डिसीजन जो है एडवर्स रिमार्क का समय सीमा के अंदर दिया गया है और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का ये स्पेशल डिस्क्रिप्शन है कि वो इसे कंसीडर करे तब तक जब तक कि रिप्रेजेंटेशन का डिसीजन नहीं आ जाता है। इफ नो रिप्रेजेंटेशन इज मेड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, इसका अर्थ है कि जो तय समय सीमा है उसके अंदर अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है या वंस सच रिप्रेजेंटेशन हैज बीन फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, या ऐसे रिप्रेजेंटेशन अंतिम रूप से निस्तारित कर दिए जाते हैं, देयर वुड बी नो फर्दर बार टू टेक नोटिस ऑफ द एडवर्स रिमार्क। तो इस स्थिति में एडवर्स रिमार्क को नोटिस लेने में कोई बाधा नहीं आती है, नहीं आएगी। कहने का मतलब कि अगर प्रेस्क्राइब्ड समय में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है या एक बार रिमार्क का रिप्रेजेंटेशन डिस्पोज ऑफ हो गया तो फिर एडवर्स रिमार्क देने में कोई मुश्किल नहीं है। फाइनली, नो मेमोरियल
or appeal against the rejection of the representation should be allowed 6 months after such rejection. यहाँ पे एक और चीज है कि कोई भी मेमोरियल, स्मारक पत्र या कोई भी अपील जो रिजेक्शन हो जाता है रिप्रेजेंटेशन का, उसको 6 महीने के बाद फिर इस तरीके की अपील या इस तरीके का मेमोरियल एक्सेप्टेड नहीं किया जाता है. In case where a decision on the representation of an officer against adverse remark had not been taken, or the time allowed for submission of representation is not over, the DPC may, in its decision, defer the consideration of the case till decision on the representation. ये रिपीट हो गया है, वही बात है कि अभी हमने कहा था. Again, letter of appreciation. Letter of, हाँ, हेलो, लेटर ऑफ एप्रेसिएशन. आवाज आ रही है? करण प्रिया गौतम इज स्पीकिंग. करण प्रिया गौतम इज स्पीकिंग नाउ. स्लाइड्स बंद हो गई है? बंद हो गई है सर. आपकी स्लाइड दिख रही है और आपका वॉइस भी आ रहा है. स्लाइड दिख रहा है और मैं ऑडिबल भी हूँ. क्लियर है सर. जी जी सर जी. हाँ, ऐसे ही बीच में फीडबैक दे दीजिएगा तो मुझे आसानी होगी. हाँ, थैंक यू थैंक यू. हाँ, पहले हेलो हेलो. हाँ जी, पहले जहाँ साहब नमस्कार, मैं सुनील काद्यान बोल रहा हूँ. सर हाँ, ओके सर. ये है कि रिप्रेजेंटेशन आपने बताया कि केवल एडवर्स रिमार्क में ही है, क्योंकि एवरेज भी एडवर्स ही है अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो, लेकिन उसको एडवर्स माना नहीं गया है थ्योरेटिकली. तो उस पर रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है? और अब तो गुड भी एडवर्स ही माना जाए, क्योंकि गुड पर भी. सुनील जी हम देंगे क्वेश्चन, अभी हमें फिनिश कर लेने दीजिए. अभी एससीआर का पोर्शन है, पार का पोर्शन है. आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में, है ना. अभी आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है सर. लेटर ऑफ एप्रिसिएशन. द जनरल पॉलिसी शुड बी टू डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ जनरल लेटर ऑफ एप्रिसिएशन और नोट ऑफ कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट. यहाँ पे एक साधारण सा है कि सामान्य प्रक्रिया तो इसको डिस्करेज करने का है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसे लागू किया गया है जिसे हमें करना चाहिए, है ना. एक्सेप्शन है, वो नीचे है कि लेटर ऑफ एप्रिसिएशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए सेक्रेटरी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग वर्क डन शुड बी गोन इनटू द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डोजियर. अगर ये स्थिति है कि सेक्रेटरी अगर है सरकार का सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क का दिया है, तो वो जरूर कॉन्फिडेंशियल डोजियर में आना चाहिए. सेकेंड थिंग, ऑफ एप्रिसिएशन इशूड बाय स्पेशल बॉडीज और कमीशन और कमिटीज एक्सेट्रा और एक्सेप्ट of their report expressing appreciation for government servant by name should only go into the confidential reports dossier. कई बार क्या होता है, समूह में हम काम करते हैं तो एक इसको तो वो नहीं आना चाहिए. अगर इस इंडिविजुअल को अगर मिलता है तो उसमें उसको देना चाहिए जगह. लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम इंडिविजुअल नॉन ऑफिशियल्स और from individual officials other than a secretary or head of department. Again वो repeat हो रहा है कि secretary level या head of department may be mentioned into the confidential report which is confined to expressing appreciation or service rendered for beyond the normal call of duty and provide the secretary or the head of department so direct. जैसा करते हैं.
रिव्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, इस पार्ट में हम देखते हैं कि it has to come the notice of the undersigned that annual confidential reports of the teachers, officers working in the school or other units have not been reviewed due to the retirement of the reviewing officer. यहाँ पे जो मसला है कि रिटायरमेंट की स्थिति में क्या होगा, तो उसमें स्पष्ट गाइडलाइन है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द रिटायर्ड reviewing officer are not empowered to review the annual confidential report after their retirement. However, क्लियर गाइडलाइन है कि रिटायर्ड रिव्यूइंग ऑफिसर है वो एम्पावर्ड नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा? देन however a note be kept in the annual confidential report dossier of the concerned officials by the reporting officer that the reports could not be got reviewed as the officer who was to review the reports had been retired the service. यहाँ पे स्पष्ट है कि जो रिटायर हो गया है वो उनको एम्पावर नहीं किया गया है, उस स्थिति में एक नोट वहां पर रहेगा. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसीआर, keeping in view of keeping streamline, the loss of streamline, it has school concern. Section एचआर का जो मेंटेनेंस all the ACRs kept in the district be sorted out on the basis of last ACR available and a list in duplicate be prepared giving name and designation of the teacher's date of birth, date of appointment in the category and the year up to which the ACR folder are available along with the pages. दूसरा है, in case any ACR folder is sent to HQ, अगर कोई ACR को हमें HQ में भेजना पड़े तो क्या स्थिति है? The number and date be indicated so that after the work relating to the folder is complete and the same is collected by the respective principal from the branch concerned. But it is to be prepared in duplicate of the ACR folders, which are left undistributed and dispatched to the coordination branch for further circulation to all the district and the schools. In future of the ACRs which are filed up in duplicate, a copy after reviewing the countersigning and reviewing and countersigning be sent to school and a copy be retained in the district HQ. The ACR folders will be kept in the custody of head of institution in case of middle school with the DDO concerned. जनरली हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के अधीन रहता है और मिडिल स्कूल के स्थिति में डीडीओ के कंसर्न में रहना है. The movement of folders will be only at the time of transfer of the staff to concerned school, which should be sent in a sealed cover along with the service book of the teacher concerned after of the ACR folder. मूवमेंट जो ACR फोल्डर का होगा जब टीचर या ऑफिशियल या ऑफिसर ट्रांसफर होगा, समय उसको कॉपी में सर्विस बुक के साथ और पर्सनल फाइल के साथ ट्रांसफर होता है, वहां से उसको स्कूल में ट्रांसफर
कीपिंग ऑफ ACR फोल्डर इज प्रॉपरली मेंशन्ड। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं मिल पाता है तो प्रिंसिपल उसको तैयार कर देगा और उसको प्रॉपरली मेंशन करेगा। In case any employee is on long leave or has not served for more than 3 months in a particular institution, the person under whom he or she served, a certificate is required to be kept in the folder for that particular period. यहाँ पे एक चीज है कि अगर कोई व्यक्ति, दो कंडीशन में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति लॉन्ग लीव पे है तो उस स्थिति में क्या होगा, 3 महीने से अधिक है तो इस संदर्भ में एक सर्टिफिकेट रखा जाएगा। दूसरा एक कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है, मान लीजिए कि अक्टूबर में ट्रांसफर हो गया और ज्वाइन करने के बाद वो लीव ले लेता है 1 महीने का, है ना, तो 3 महीने वाले में वो लीव पीरियड क्या काउंट होगा, तो यस वो पीरियड काउंट होगा और वो पीरियड डिडक्ट होने के बाद जो पीरियड होगा वो 3 महीने के लिए कंसिडरेशन में आएगा, जिसको आगे हम चर्चा करेंगे। Countersign of very old ACRs of some retired existing teachers of Delhi government school. इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन ये है कि it has come to the notice of the undersigned that while preparing the cases for ACP, MACP to the teachers, the annual confidential report pertaining to 1, 2 or more years like displayed on slides in respect of some retired or existing teacher were found untraceable. Now the concerned teachers are approaching the education officers of the concerned period with their annual confidential report for the period to countersign and review the same. Therefore requested to send the requisite information to concerned district on the following points. Pehla, to identify all such cases of countersign annual confidential report not discovered and prepared conciliatory report in this regard. पहला तो ये है कि ऐसे जितने भी केस हैं उसको प्रिपेयर करना है, उसको खोजना है। दूसरा, initiate an inquiry through the present education officer and examine whether these annual confidential report were actually lying in the school office unidentified for a decade, and further to obtain a certificate from the present incumbent of the school office and his predecessor handed over the annual confidential report to him or her, or she has discovered the annual confidential report in the school office. कहने का मतलब कि जो प्रेजेंट है वो उसको खोजेगा, खोज करके अगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है तो वो एक सर्टिफिकेट देगा इसके रिगार्डिंग। The compliance status report on the above matter may be sent to the concerned establishment branch at the headquarters as per guideline time to time issued by HQ. Result adopted school will be reflected in ACRs of officer. With a view to improve the result and overall academic environment of our school, officers of the Directorate of Education were assigned 2 and 3 schools for adoption. White letter number displayed on the slide. Further modified the dated 2005 dated itna. It was desired that the officer will respect the school regularly and give guidance and assistance to the school authority for improvement of results, especially that of the board going classes. All concerned officers are required to send inspection report regularly to the school branch, and the results secured by the adopted schools will be reflected in the ACR of the concerned officer. तो adopted वो कंसर्न ऑफिसर के उसमें
रिफ्लेक्ट होगा। ट्रीटिंग द पीरियड ऑफ ऑन लीव टेकन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिपोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग 3 months ऑफ सर्विस अंडर ए रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर। यहां इसका मतलब है कि वो जो 3 month का पीरियड एटलीस्ट रखा गया है रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए, उस पीरियड में अर्न लीव जो लिया गया है एम्प्लॉय के द्वारा या ऑफिशियल रिपोर्टेड अपॉन के द्वारा, तो उसको काउंट करना है या नहीं करना है, इस पे क्लैरिफिकेशन है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ this department, the reporting and reviewing officer are required to have at least 3 month experiences of supervising the work and conduct of the government servant report upon to record their assessment in the annual confidential report. The question is treating the period of on leave availed at a time for more than 15 days by the officer to be reported upon during the period of report has been considered in this department. कि क्वेश्चन ये है कि 15 दिन का अगर अन लीव ले लिया इस पीरियड में, तो वो कंसिडरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा है या नहीं है। It has now been decided that there where an officer has taken on leave for a period of more than 15 days, the total period spent on leave can be deducted from the total period spent on any post for the purpose of computing the period of 3 months, which is relevant for writing the entries of ACR. Leave taken for short-term duration need not to be treated as relevant for the purpose. कहने का मतलब 15 और उससे वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस। ACR to be sent for consideration for granting promotion of ACP or ACPs. It has been decided that in future of education for the purpose of promotion or for grant of ACP and MACP benefits. कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल है वो वहां पे नहीं जाएगा। According to in future only photocopies of the ACR duly attested by the principal, public head of school of the concerned school should be submitted through district DDs for the purpose of promotions or grant of ACPs or MACPs benefits. Again, I repeat, accordingly, in future, only photocopies of the ACR duly attested by the principals or HOS of the concerned school should be submitted through district DDs for the purpose of promotion or grant of ACPs, MACPs. हेलो सर, हेलो सर, अभी सर जो प्रमोशन हुए हैं सर, उन सभी प्रमोशंस में ओरिजिनल ACR डिमांड की गई थी और ओरिजिनल ही अटैच की गई है सर फाइल्स के साथ, और ये आप कह रहे हो कि इसमें ओरिजिनल नहीं भेजना होता, अटेस्टेड फोटोकॉपीज को सबमिट करना होता है सर। ये क्या कंफ्यूजन सा है सर? कुछ प्लीज कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर। देखिए, गाइडलाइन तो यही है, लेकिन रूल्स और सर्कुलर, रूल्स तो एक बेसिक हो जाता है, सर्कुलर होता है समय समय की आवश्यकता है। हालांकि फोटो कॉपी, अटेस्टेड कॉपी मांगा जाना चाहिए, लेकिन अगर मांग रहे हैं टाइम टू टाइम ये चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक सर। रूल्स में तो यही है कि फोटो अटेस्टेड कॉपी भेजा जाना चाहिए। नाउ डिस्क्लोजर जी, बबीता वर्मा इज स्पीकिंग नाउ। सर यही बात बोल रहे थे कि हम लोगों ने ओरिजिनल ही जमा की हुई है, हमारी सब ओरिजिनल गई हुई है,
अभी जो प्रमोशन में हाँ ओरिजिनल हम लोग अभी कर रहे हैं। मांग लेते हैं लेकिन हम लोग क्लैरिफिकेशन नहीं लेते हैं ना। जब मांगा जाता है तो हम क्लैरिफाई कराते हैं और जैसा पालन कर लेते हैं। देखिए फिर भी रूल और सर्कुलर हमने पहले ही कहा था कि ये जो अपार और एसीआर लिखने का है ये डीओपीटी की गाइडलाइन है और उसमें हर डिपार्टमेंट अपना अपना चेंजेस कर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही रहता है। तो ये डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग है मान लेता है तो गाइड और जो लेटेस्ट सर्कुलर है, लेटेस्ट गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मगर रूल तो यही है कि अटेस्टेड कॉपी देना चाहिए। सर अब वो वापस जो ओरिजिनल हेलो हाँ सर बोलिए। हाँ सर ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल इसलिए लीक रहता है हमारा। देखिए वाइस प्रिंसिपल की बात सबका, हमारे यहाँ 2 एस्टेब्लिशमेंट है, कई एस्टेब्लिशमेंट है, जीओसी है, सेक्रेटरिएट ब्रांच है और E2 है, E3 है, वो सबका है। तो देखिए अभी मैंने एक स्लाइड सबसे शुरू में दिखाया था जिसमें ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक कस्टोडियन है ना। तो कस्टोडियन जहां अगर कस्टोडियन सेम है तब तो फिर उसको जरूरत ही नहीं है। अगेन टाइम कम है, थोड़ा सा मैं जल्दी स्लाइड को घुमाता हूं। डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अंडर आरटीआई एक्ट, इसको मैं संक्षेप में बता दूं कि एसीआर आरटीआई के द्वारा थर्ड पर्सन नहीं मांग सकता क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 स्पष्ट कहता है कि अगर किसी की व्यक्ति की निजता भंग होती है, उसको हर्ट पहुंचता है, हार्म पहुंचता है, तो इस कंडीशन में अथॉरिटी एसीआर डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थिति है जिसमें लार्ज इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज है, तो उसमें जो सुनवाई ऑफिसर होते हैं आरटीआई के, वो उसको परमिशन अगर देते हैं तभी दिया जा सकता है, वरना साधारण परिस्थिति में आरटीआई के द्वारा इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। फिर है मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन। हाँ अभी सर अभी मुझे फिनिश कर लेने दीजिए, बहुत ज्यादा। हाँ अब यहाँ पे एक चीज और है कि राइटिंग ऑफ एसीआर बाय ऑफिसर अंडर जी जो अधिकारी है उनको एम्पावर नहीं किया गया है लिखने के लिए एसीआर और उसके लिए। अपार का के लिए है कि यहाँ पे जो एसीआर है उसका नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया है 2009-10 के बाद और वो अपार में आ गया है और 7th पे कमीशन में तो सबके लिए अपार है। उसमें जो एरिया स्पेसिफाई किया गया है वो उस पे असेसमेंट किया जाता है और उस पे न्यूमेरिक फिगर में असेसमेंट किया जाता है। तो कैसे है वो अभी हम आपको डिस्कस करते हैं कि provision may be made in the part in the relevant section or remark by reviewing officer to indicate specifically in difference, if any, the assessment made by the reporting officer and the region. For numeric grading are to be awarded by reporting officer and reviewing officer for the quality of work output, personal attitude and functional competence of the officer. और ये जो ग्रेडिंग होगा वो 1 से 10 तक होगा। लोएस्ट ग्रेडिंग 1 है, हाईएस्ट 10 है और एनेक्चर 1 में इसको दिखाया गया है। साथ ही 1 से 10 ग्रेडिंग करते समय हम 3 एरिया को करते हैं जिसका वेटेज है वर्क आउटपुट का 40% है, पर्सनल एटीट्यूड का 30% है, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी का 30% है और ओवरऑल ग्रेडिंग जो होता है इस वेटेज को जोड़ करके हम उसमें प्रोपोर्शनली रखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि
ग्रेडिंग करते समय दो चीज ध्यान रखना है कि 1-2 जनरली नहीं देना है, और 9-10 रेयर, 1-2 और 9-10 रेयर केस माना जाता है, उसमें जस्टिफिकेशन विथ पेन पिक्चर रिक्वायर्ड है। इस चीज को बड़े ध्यान से रखना है। इसमें वही बातें की गई है, 1-2 और 1-2 और 9-10 आर एक्सपेक्टेड टू बी रेयर occurrence, hence the need to be justify them। अपार में 8 से 10 वाला जो माना जाता है वो आउटस्टैंडिंग है, और इसका एवरेज स्कोर 9 रखा जाता है प्रमोशन कमेटी के द्वारा। अपार वेरी गुड 6 to 8 वेरी गुड में आता है, इसका एवरेज स्कोर 7 माना जाता है। 4 से 6 गुड माना जाता है और इसका एवरेज स्कोर 5 है, और में एवरेज स्कोर 0 दिया जाता है, तो बिलो 4 ना दें, और अगर जो भी देते हैं उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये जो वर्क असेसमेंट आउटपुट है, accomplishment of planned work allotted as per subject, quality of output, analytical ability, accomplishment of exceptional work, unforeseen task performed, और उसका वेटेज सब में देते हुए नीचे 40% आएगा। फिर दूसरा पार्ट है, इसमें 30% का एवरेज है, एटीट्यूड टू वर्क, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, capacity to work in the team spirit, capacity to work in time limit, interpersonal relationship, 30% इसका है। और फिर नेक्स्ट जो है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर इन द एरिया ऑफ फंक्शन एंड एबिलिटी टू अप्लाई देम करेक्टली, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, एबिलिटी टू मोटिवेट एंड डेवलप सबऑर्डिनेट, तो इसका 30% है। और सबको सम अप करते हुए फिर ओवरऑल ग्रेडिंग होती है। एक टाइम शेड्यूल जो है प्रिपरेशन का, ये तो डीओपीटी का है, लेकिन टाइम टू टाइम अपने डिपार्टमेंट में सर्कुलर आता है, उसको ध्यान में रख के हमें करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंक अपार्ट फॉर्म्स टू ऑल कंसर्न 31 मार्च है। सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्रेजल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर बाय ऑफिशियल टू बी रिपोर्टेड अपॉन एम्प्लॉय 15 अप्रैल तक दे देगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हमारे स्कूल एजुकेशन में आता है कि हमारा रिजल्ट नहीं आता है उस समय तक, तो हम इसे मई जून में ले जाते हैं। तो ये गाइडलाइन है डीओपीटी का, बट हमारे स्कूल एनवायरनमेंट में, एजुकेशन में यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिव्यूइंग ऑफिसर 30 जून है, लेकिन ये हमारे यहाँ बढ़ता है। रिपोर्ट टू बी कंप्लीटेड बाय रिव्यूइंग ऑफिसर एंड टू बी सेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन और सीएस सेक्शन ऑब्लिक सेल और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अगस्त के बाद जाता है। अप्रेजल बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वेयर एवर प्रोवाइडेड 31 अगस्त है। तो 31 अगस्त जो है वो फाइनल है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है क्योंकि रिजल्ट और वो का देखा जाता है। बस इसका सेंस ये है कि टाइम पे ये हो जाना चाहिए। एक और चीज जो है, डिस्क्लोजर टू द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन वेयर वेयर इज नो एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अपने यहाँ जनरली एक्सेप्टिंग ऑफिसर नहीं है, रिव्यूइंग ऑफिसर है, तो रिव्यूइंग ऑफिसर उसको डिस्क्लोज करेगा। तो यहाँ सितंबर है, तो जस्ट कंप्लीटिंग द रिपोर्ट कंप्लीशन के 15 दिन के अंदर उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। डिस्क्लोजर टू द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन वेयर द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी 15 सितंबर दिया गया। रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑन अपार 15 सितंबर, लेकिन यहाँ है जिस दिन वो अप्रूव हुआ है और कम्युनिकेट किया गया है डिस्क्लोजर, उसके 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिव्यूइंग ऑफिसर से एक रैंक ऊपर को वो देंगे, है ना। और फिर जहां एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वहां अलग डेट है, जहां नहीं है वो अलग डेट है। हमारे यहाँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तो साधारण तौर पे नहीं है, और उसके लिए से संबंधित जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये कह देता हूँ, सारे साथी हैं हमारे, वाइस प्रिंसिपल हैं, न्यूली प्रोमोटेड हैं, ऑफिसर, उनके पास संभावना, जो यंग होंगे उनके पास तो काफी संभावनाएं हैं। मुथु स्वामीज हैं, डीओपीटी का जो वेबसाइट है उसको पढ़ें, और टाइम टू टाइम जो सर्कुलर आता है डिपार्टमेंट की, क्योंकि हम लोग
हमारे साथी ने बताया कि सर ऐसा होता है, तो उसका क्लेरिफिकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, उसमें डरे नहीं, हिचके नहीं, कंटेंट अथॉरिटी से बात करें, फिर जैसा गाइडलाइन वो देते हैं उस पर बात करें। तो सर अब 5 मिनट के लिए मैं अपना ओपन एंड सेशन खोलता हूं सभी लोगों के लिए डिस्कशन के लिए, फिर पोस्ट टेस्ट का एक क्वेश्चन, एक स्लाइड आएगा, तो काइंडली उसको रिएक्ट करिएगा। तो मैं ओपन सेशन दे रहा हूं कि अगर कोई क्वेरीज है, जैसे सुनील काद्यान जी ने रेज इशू किया था कि सर एवरेज अपने आप में एक एडवर्स है, नो डाउट एक्सटर्नली वो एडवर्स दिखता नहीं है, लेकिन जब डीपीसी काम करती है और प्रमोशन के लिए उसका एक्सेप्टेंस आता है तो अबव एवरेज मांगते हैं, तो उस कंडीशन में तो वो एडवर्स है ही। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि रिव्यूइंग ऑफिसर और रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपको लगता है कि आपने जो अपने पार्ट पे लिखा उस पार्ट को इग्नोर करके लिखा गया है, तो आप असहमति जताते हुए गुड में भी डाल सकते हैं, वेरी गुड में भी डाल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन डालने का आपको अधिकार है। हाँ सर, हेलो। नहीं सर, एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है ना इसमें कि एडवर्स होने पर ही एसीआर हमें डिस्क्लोज की जाएगी। एवरेज और गुड पर डिस्क्लोजर का प्रोविजन एसीआर में नहीं है, अपार में तो है लेकिन एसीआर में नहीं है, नहीं रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कंसर्न एम्प्लॉय को। जी सर। तो मैं रिपीट किया था कि एसीआर में डिस्क्लोजर नहीं है और अपार में डिस्क्लोजर है। अब एसीआर, अब प्रॉब्लम आता है हमें कैसे पता चलेगा, है ना? तो एडवांस एंट्री एकदम डायरेक्ट नहीं दिया जाता सर, पूरे साल ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम मेमोरियल दिया जाता है रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा कि आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है, काइंडली इसको अपडेट करें, काइंडली। तो वो सब जमा होता है, उसके आधार पर वो रिव्यूइंग ऑफिसर से बात करता है, और तब जब रिव्यूइंग ऑफिसर उससे संतुष्ट होता है तब वो एडवर्स रिमार्क दिया जाता है, और एडवर्स रिमार्क जैसे ही दिया जाता है तो सेम एडवर्स रिमार्क विल बी कम्युनिकेटेड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन। उसको एसीआर को दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन उसको ये दिखा दिया जाएगा कि आपका एसीआर में ये एडवर्स रिमार्क दिया जा रहा है, ताकि आप अगर इससे असंतुष्ट हैं तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास विद इन टाइम फ्रेम 1 मंथ है, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एसीआर का प्रोसीजर है। अपार में तो है कि जैसे अप्रूव हुआ उसके 15 दिन उसको दिखाना है, और उसमें डिस्क्लोजर पे सिग्नेचर भी होता है ना? तो जी सर, लेकिन एवरेज और गुड यदि दे रहा है तो उसमें तो पता नहीं चलता कंसर्न एम्प्लॉय को, वो पता लगता है एक जब जरूरत पड़ती है, तब जब 2-3 साल बाद प्रमोशन आता है तब पता चलता है, पता ही नहीं चलता है उसका। हाँ, एसीआर के मामले में है, एसीआर के मामले में है, ये बात सही है कि एवरेज दिया गया उसको पता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ अभी मैंने कहा ना कि एवरेज अपने आप में एडवर्स नहीं है, लेकिन डीपीसी के लिए तो एडवर्स है ना? तो हमें एवरेज को भी कम्युनिकेट करना चाहिए बीइंग ए रिपोर्टेड ऑफिसर कि एवरेज क्यों दिया आपने, कुछ तो वजह होगा ना। अगर प्रोसीजर का पालन कर तब तो है कि उससे कम्युनिकेशन देते रहे, क्योंकि देखिए एसीआर ये पनिशमेंट के लिए नहीं है, ये एक आवश्यक टूल है अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए, उसके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है, उसको सफिशिएंट मौका दिया जाता है ताकि ग्रो कर सके, लेकिन लोग नहीं करते, वो अलग चीज है ना? इसीलिए तो ये ट्रेनिंग रखी गई है कि इसको बढ़िया से समझे। अब आपका एक इश्यू है कि गुड भी दे दिया गया है और उसके लिए हम क्या करें, है ना? अपार वाले में, है ना? देखिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हेलो सर। अभी हाँ, हेलो सर। हाँ, नरेंद्र पाल जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलो बेंचमार्क और एडवर्स? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। बिलो बेंचमार्क जो है वो डीपीसी एक्सेप्ट नहीं करता है प्रमोशन के लिए, ये बिलो बेंचमार्क की परिभाषा है।
और एडवर्स है कि देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे एवरेज एक्सेप्टेबल, वो एडवर्स में नहीं है, लेकिन डीपीसी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका बेंचमार्क क्या है प्रमोशन के लिए, एमएससीपी के लिए? अबव एवरेज। तो अबव एवरेज जब लगा दिया तो एवरेज तो बिलो बेंचमार्क हो गया। और एडवर्स जो हो गया वो व्यक्ति के अगेंस्ट एक क्रिटिक्स जाता है, वो एक ड्रॉबैक्स है उसका, वो उसकी एक शिकायत है। ये अंतर है सर। कन्हैया सर, हाँ सर, कैन वी क्विकली वाइंड अप द सेशन? हम टाइम से आगे जा रहे हैं। ये मैडम मुझे दे दीजिए, ये मेरा दोस्त रहा है, लेक्चर भी था, तो मैं अपने साथियों को थोड़ा टाइम देना चाहता था। नाउ आई एम ट्राइंग टू वाइंडिंग अप बिफोर पुटिंग द क्वेश्चन ऑफ पोस्ट सेशन। नाउ आई एम डिस्प्लेइंग पोस्ट सेशन क्वेश्चन। दिस इज द पोस्ट सेशन क्वेश्चन. Honestly, our participant will react. Do you think how much the session was fruitful for you? Option A, option B, option C, option D. Second question is, what grading do you want to give to this session for enhancing your knowledge to work as reporting /reviewing officer? Option A, option B, option C, and option D. Third, is the process of disclosure mandatory in APAR by the officer competent? Option A, option B, option C, option D. Fourth, how many months at least required by reporting or reviewing officer to observe the work and conduct of official reported to write APAR in the year? Option A, option B, option C, option D. Fifth and last question, can retired reporting office or reviewing officer write or review APAR after his retirement? Option A, option B, option C. This is the post test of this session, and I hope you will be benefited from and you will be must proved as a leader or administrative officer. थैंक यू सर। अभी किसी पार्टिसिपेंट्स के अगर कुछ सवाल है, कुछ डाउट्स हैं, हाँ, तो आप पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल क्वेश्चन है। मेरी क्यूरी है सर। सर अगर 3 मंथ्स, सर अगर 3 मंथ्स ना पूरे हुए, जैसे सर हमारे यहाँ अक्टूबर में 2 टीचर्स ने ज्वाइन किया था और दोनों आने के बाद 2 दिन बाद मैटरनिटी लीव पर चली गई, तो क्या उनकी अपार भरी जानी चाहिए थी? अक्टूबर में आपके यहाँ तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? तो आप तो 5 महीने के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर है ना? तो आपके पास सर वो न्यूली ज्वाइन थे सर, अभी इन्होंने सर उससे पहले उन्होंने ज्वाइन ही किया था, न्यूली अपॉइंटेड थे। नहीं लिखा जाएगा उसमें एक जाएगा एसीआर एसीआर में एक लिखा जाएगा कि इस कारण से इसका ये एसीआर नहीं लिखा जा रहा है, और सेम अपार में भी किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 2 दिन 4 दिन छुट्टी हो गई है तो वो नहीं कंसीडर किया जाएगा। नहीं सर, यही था कि उन्होंने अपॉइंट किया था और आते ही दोनों के दोनों मैटरनिटी लीव पे चली गई, जिसके और फिर मतलब उनकी अपार के लिए प्रॉब्लम आ रही थी सर कि उनको करवाना है कि नहीं, अपार भरनी है कि नहीं। देखिए अपार में वो क्या भरेंगी ये देखिए ना, न्यूली अपॉइंटेड है और अक्टूबर में ज्वाइन किया,
2 दिन वो रही और तो वो अपार भरेगी, लेकिन रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर उसका वही रिमार्क्स देंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और कोई क्वेश्चन?